Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will deal today with the icebreakers of the Inchcape Rock. The first question is prepare a word register related to marine life. You have sailors as a clue given to you. You can write others as ocean, fish, crab, reef, ship, waves, algae, shark, dolphin, etc. Okay. The functions of a lighthouse are, first one is given to you to show the direction. Two more are asked. So you can write as to serve as a navigational aid. I repeat, to serve SERVE as navigational aid, NAVIGATIONAL aid, aid. Okay. Third one, for the function of lighthouse, you can write to warn boats of dangerous area. To warn, WARN, warn means to give warning. Boats of dangerous area. Okay. Next is discuss in pairs the various famous rocks in the world and mention the places where they are. So first one is given to you. You can name the rocks of world is mentioned, so you can give the names of any place in the world, or you can give the names of the rocks available in India as well. So famous rock is 12 Apostles. Apostle spelling is APOSTLES. Place is Australia. Next is Hanging Rock. Place is Australia again. Third one you can write is Shillin Store Forest. SHILIN. Shillin STONE. Stone FOREST. Forest. This is in China. Then in India you can write Yana Rocks, YANA, Yana Rocks, place Karnataka. Toad Rock, toad similar to frog, okay, but frog is green in color and toad have a black color complexion. It becomes easier for you if the words are used in this way, okay. Toad Rock, place is Nallaki Lake near Arbuda Mountains. Famous rock again, Face Rock. See, I am giving you the names of the rocks which will be easier for you all to remember. Face, Chehra. Face Rock, this is in Deccan Plateau. Then Marble Rocks, okay, this is in Jabalpur. Now narrate in the class a story about someone who destroyed or spoiled someone else's good work. This is not necessary that you write a current event. You can write anything even of your childhood days. As small kids, many often times, knowingly or unknowingly, you spoil up the drawing made by your friends or siblings. यहाँ पे आपको कहानी अभी की मौजूदा हालत की वो ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे आप कोई भी कहानी लिख सकते हो. हमको सिर्फ यहाँ लिखना है किसी के बारे में जिसकी वजह से या आपने किसी का कुछ खराबा किया हो या किसी का अच्छे काम का ख़राब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है. तो जैसे ड्राइंग वगैरह में अक्सर हम लोग देखते हैं किसी का रंग हमारा पानी उसका वाटर डिश पड़ा है, हमारा धक्का लगने से वाटर डिश फिलअप हो गया, ड्राइंग ख़राब हो गई, या किसी और का आपका मतलब आपकी ड्राइंग ख़राब हो गई. या हम जब छोटे रहते हैं तो अपने भाई बहनों की बुक्स लेके स्क्रिबल कर देते हैं. स्क्रिबल मतलब पेन पेंसिल से उस पर लिख देते हैं जिगजैग वे में या कुछ भी अटपटा.
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी की मैं या किसी का कुछ ग्राफ्ट का मॉडल है, क्राफ्ट का मॉडल बनाया था हमने, उसको ख़राब कर दिया, या कुछ भी आप लोग लिख सकते हो कि किसी का कोई अच्छा काम जो ख़राब किया हुआ आप भी कर सकते हो, या किसी और ने आपकी कोई चीज़ ख़राब कर दी वो भी आप मेंशन कर सकते हो। डिस्कस इन पेयर्स एंड ग्रुप्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, एज यू सो यू शैल रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मैंने आपको समझा दिया, अभी आप लोग उसके बारे में अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो ये एक उन्वान के तौर पे भी आ सकता है फॉर ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में एज यू सो यू शैल रीप, अगर ऐसे कुछ इनवान आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे में बेसिकली ये नरेटिव एसेज होते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ एक स्टोरी टाइप में डालना होता है ऐसे में, ताकि ये जो उन्वान है उसके साथ आप लोग क्या है उसको बराबर आप बैलेंस आउट करके चल सको। क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट, मतलब गुनाह अगर कोई करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलती ही है। वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो हमारे से कोई चीज़ जो भी अच्छी हो या बुरी हो, हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो अगर हमने किसी के साथ भलाई की तो हमारी भलाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती। अच्छे का भला मतलब बदला जो है, सिला जो है हमेशा अच्छा ही मिलता है। उसी तरह से अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो बुरे का सिला बुरा ही मिलता है, ऐसा है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, ठीक है। इविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल्स इनटू द सेम, ये हम लोग ने देखा है इंचकेप रॉक की पूरी पोयम में। इविल मतलब बुरा, डिग्स अ पिट, पिट मतलब दूसरों के लिए गड्ढा जो खोदते हैं लोग बुरी नीयत से, अक्सर वो लोग खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सो होप द आइस ब्रेकर्स आर क्लियर टू यू ऑल। Okay, we continue with the brainstorming of the Abbot of Oberbrothok. First one, A1 is narrate in groups the scene described in the beginning of the poem. नज़म के शुरुआत में किस नज़ारे का जिक्र किया गया है उसको आपको लिखना है। ओके, अभी वो मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, कोशिश कीजिए खुद से करने की। यू विल हैव टू ट्राई ऑन योर ओन, ओके, सो दैट यू नो हाउ मच यू ऑल हैव अंडरस्टूड। मैंने इसके लिए नहीं कहा है कि आपको कोई दिक्कत हो, बट हम चाहते हैं कि आप लोग कोशिश करो ताकि आपको पता चले कि कितना आपको खुद को समझ में आया और कितना आप लोग लिख पा रहे हो। ओके, A2 complete the following statements. The abbot of Oberbrothok placed a bell on the Inchcape Rock because, क्यों लगाई थी उन्होंने बेल, उसका वजह लिखनी है। The mariners were grateful to the abbot of Oberbrothok, जो थे दरियाई सफ़र करने वाले थे, उन लोग ने एबॉट ऑफ ओबेरब्रोथॉक के वो क्या थे, शुक्रगुजार थे। क्यों थे, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द थिक हेज दैट कवर द स्काई वॉज दैट, नतीजा जो था, जो आसमान घिर गया था काले बादलों से, उसका क्या हुआ। द रोवर इन फ्रस्ट्रेशन पुल्ड हिज हेयर एंड कर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज, जो रोवर थे उन्होंने फ्रस्ट्रेशन मतलब गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, अपने बाल नोचे और अपने आप को बुरा भला कहा, अपने आप को गालियाँ दी, अपने आप को कोसा। क्यों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नज़म में समझा दी हैं, तो इसके जवाबात आपको लिखने लिए आसान होना चाहिए। इसके नीचे दिया है A2 का सेकेंड वाला, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट गिव द थीम ऑफ द पोएम इन अ जम्बल्ड फॉर्म। जम्बल किसको बोलेंगे, बेतरतीब, ठीक है। अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर अकरेंस, जिस तरह से ये वाक़यात पेश हुए थे नज़म में, जैसा आप लोग ने पढ़े थे उस हिसाब से इन दिए हुए 5 ABCDE, इन 5 जुमलों को आपको तरतीबवार लगाना है, ठीक है। दैन A2 थर्ड वन, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ एबॉट ऑफ ओबेरब्रोथॉक इन योर ओन वर्ड्स। वहाँ पे क्वालिटीज़ में आपको दिया हुआ है बेनिवलेंट, बिग हार्टेड, आप और क्या लिख सकते हो, वेलविशर, वेलविशर मतलब खैरख्वाह, केयरिंग, केयरिंग मतलब फ़िक्र करने वाला लोगों की, क्लेवर, क्लेवर मतलब होशियार, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब कितना, मतलब किसी के लिए हम मदद करेंगे तो काम जो है फ़ायदेमंद साबित होगा, सिर्फ ज़बानी तौर पे नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वैसा प्रैक्टिकल उसको बोलते हैं। सेल्फलेस, सेल्फलेस मतलब जो
खुदगर्ज ना हो। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है जेलसी इज द मोस्ट इनक्योरेबल डिफेक्ट जस्टिफाई। जेलसी मतलब जलन, इज द मोस्ट, जलन क्या है, मोस्ट मतलब सब में बदतरीन, क्या है, इनक्योरेबल। इनक्योरेबल मतलब जिसका कोई इलाज नहीं होता, डिफेक्ट मतलब खामी, तो सब में बदतरीन खामी क्या है, जलन है। इस जुमले को आपको क्या है, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब इसके बारे में आपको ऐसा कहा गया है, कितनी हद तक सही है या गलत है, आपको अपने नज़रिए से इस बात को लिखना है। ठीक है, ये जुमला सही है ऐसा लगता है आपको, तो वैसा उस हिसाब से लिखो आप लोग जवाब। बट द रोवर्स mirth was wickedness. Explain this line in your own words with the help of poem. अब ये जो जुमला है नज़म में आया हुआ, but the rover's mirth was wickedness, इसको अपने अल्फाज में जो है आपको लिखना है। Some words in the poem are related to mariner's life. Given below are the meanings of those terms. Identify their words. मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं छोटे छोटे और वो इशारा करने हैं किस पार्ट के, जहाज़ के। हेल्प्स इन स्टीयरिंग द शिप, तो स्टीयरिंग व्हील होता है, गोल्ड का कलर का होता है, जिसकी वजह से क्या है, जहाज़ों को लोग घुमा के सिमत बदलते हैं। लोवेस्ट पार्ट ऑफ द शिप, नीचे कील हम लोग ने पढ़ा है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दैट शोज डायरेक्शन, जहाज़ में जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, स्टीयर, STEER। अनदर नेम ऑफ फॉर अ शिप, वेसल, ये हमने पढ़ा था लास्ट स्टैंजास में थे। सिंकिंग साउंड, सिंकिंग साउंड डूबने की आवाज़ क्या थी, आप लोगों को दिया हुआ है गर्गलिंग। ठीक है, ओके। पेज नंबर 108 पर जो है फर्स्ट आपको बैलेट का पूरा मीनिंग दिया हुआ है। सेकंड में दिया है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन। पहला है सर रैल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, अलिट्रेशन है। क्लोज रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, आर रिपीट हुआ है ना, H हिज और हेयर में। ठीक है, सेकेंड वाला है नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी बोली थी नो स्टर, ये वर्ड रिपीट हुआ है तो रेपिटेशन होगा। एलिट्रेशन भी है क्योंकि साउंड ऑफ एस, स्टर सी में जो है आ रहा है। फिर ऑन अ बो इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, यहाँ पे एलिट्रेशन है, स्टॉर्म और स्वंग में साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड। और इन्वर्जन है, इन्वर्जन है मतलब ऑर्डर ऑफ वर्ड इज चेंज। इट फ्लोटेड एंड स्वंग ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म, ये करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए। डाउन सैंग द बेल विद द गर्गलिंग साउंड, यहाँ पे वापस से इन्वर्जन है। द बेल सैंग डाउन विद द गर्गलिंग साउंड, ये राइट ऑर्डर है। द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, ठीक है, द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, ये क्या है, अपॉस्ट्रोफी है। इट इज़ द डायरेक्ट एड्रेस टू वॉट, अ डेथ, मतलब डेथ टाइम इज अराइव्ड। नेक्स्ट इज द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, इसमें सिमिली है, कंपेरिजन है फॉर अ नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अलिट्रेशन है, SS शिप और स्टिल में रिपीट हुआ है। और पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन क्यों है, इंसान जो है कई बार थम जाता है, तो यहाँ पे इंसानी सिफत दी है जहाज़ को सीधा एक जगह ठहरा हुआ होने की। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, इन्वर्जन है, द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक, ये करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए। ओ क्राइस, ओ क्राइस में क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक जो है डाउन सैंग द बेल विद द गर्गलिंग साउंड, यहाँ पे इन्वर्जन के साथ साथ जो है ना ओनोमेटोपिया भी है। ओनोमेटोपिया मतलब कोई अल्फाज से किसी चीज़ की आवाज़ को जाहिर करना, तो यहाँ पे बेल बजने की आवाज़ कौन से अल्फाज से जाहिर हो रही है, गर्गलिंग से। ठीक है, तो ये 8 हमने एक्सप्लेन कर दिए है। फिर A5 राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द इंच केप रॉक। एप्रिसिएशन मतलब आपको खुद को अपने अल्फाज में पूरी नज़म का क्या है मफहूम लिखना होगा। कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑन सी।
आपको 4 से 6 जुमले लिखने हैं सी पर। आइडियाज़ ऑन योर ओन, अपने मतलब अपने ही जहन से का इस्तेमाल करके आपको ये आइडियाज़ को अच्छे से लिखना है बड़े पैराग्राफ फॉर्म में। प्राइड गोज़ बिफोर अ फॉल, घमंड का क्या है, जो इंसान घमंड करता है उसको हमेशा क्या है, झुकना ही पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं वो उसका घमंड ले डूबता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम मतलब वक्त है, टाइड मतलब समुद्र की लहर, ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बंदा मांगता है और देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की है। ठीक है, तो अल्लाह की रज़ा होगी तो मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। लुक बिफोर यू लीप, हम जब आगे छलांग लगाने जा रहे हैं तो छलांग लगाने से पहले हमको देख लेना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाया है ताकि आप लोगों को अगर मायने समझ में आया तो आप लोगों को इस पे अपना आइडियाज़ लिखने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। द पोएम बिगिन्स विथ, पोएम की शुरुआत कैसे हुई है, विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ दियर शॉक इट वेव्स द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, और ख़त्म कैसे हुई, it ends with till the vessel strikes with a shivering shock. On the basis of these lines explain the change in mood of the poem। देखो विदाउट सीधा साइन, यहाँ पे क्या था, मौसम खुशगवार था, है ना, और आखिर में जो जुमला है उससे क्या होता है कि खुशी के पल से एकदम से जो उसका एंड हुआ वो कैसा हुआ, एकदम दुख भरा हुआ। ठीक है, तो ज़िंदगी में हमारे कैसे होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, हमेशा वक्त यकसा नहीं रहता, खुशी के बाद गम और गम के बाद दोबारा से खुशी होती है, तो हमको इन सारी चीज़ों को मानकर लेकर चलना है। A7 में आपको सिर्फ पढ़ना है, ट्री डायग्राम है, इन्फॉर्मेशन है, इंडियन नेवी अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करना तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। इंडियन नेवी क्या है, हमारे मुल्क का फ़क्र, नेशंस प्राइड, नेविगेशन एंड डायरेक्शन, उसमें कैरियर इन मर्चेंट नेवी दिया है कि आपके मुस्तकबिल में आप क्या क्या उसमें ले सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, ओशियन इंजीनियरिंग होता है, मरीन रिसर्च होता है, कम्युनिकेशंस होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली इसके लिए होगा कि समुद्री जहाज़ों से और जो किनारे हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा होता है। मरीन साइंटिस्ट होते हैं। कार्गो मैनेजमेंट, कार्गो मैनेजमेंट बेसिकली जो बड़े बड़े जहाज़ जो सिर्फ सामान ही लेके जाते हैं, इंसान नहीं होते हैं उस पर, उसके बारे में होगा। फिर मरीन आर्कियोलॉजी, वो है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर नेवल रिलेटेड जॉब्स, हमारे को क्या क्या स्किल्स होना चाहिए ताकि हमको नेवल रिलेटेड जॉब मिले। रिगरस ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो ट्रेनिंग है। डिफेंस स्टडीज़ है, डिफेंस के बारे में पूरी पढ़ाई करनी होगी हमको। फिज़िकल और मेंटल स्किल ट्रेनिंग, ये अगर आप नेवी वगैरह ज्वाइन करते हो तो उसमें आता ही है। एटीट्यूड एंड टीम स्पिरिट, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, टीम स्पिरिट कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आएंगी। और आपको लास्ट में वेबसाइट दिया हुआ है अगर आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करना है तो। ओके।